girls have started getting periods as early as the age of 8 years. Correct. According to ICMR, 40 to 50% of infertility cases are because of male infertility. 60 to 70% of the females coming for infertility treatment is due to the family pressure. Medically, the right age to plan your pregnancy is if you have intercourse a couple of days before that, and after that you have the highest chances of getting pregnant. 80 to 90% जिसका miscarry होता है, they ask me one question. A woman in her 30s, वो कैसे prepare करे for her menopause? Painful periods लोगों को normal इसलिए लग रहे हैं because women are trained that suffering is a part of life. Hi guys, welcome to another episode of Moms Unmuted. I am Sonia Kotak and today we have a special guest, Dr. Palak Jariwala from Femina Women's Care in Surat. She's a dedicated gynecologist. She has been a guiding light to thousands of women in their life journey. So if you are a mom to be, a new mom, or a woman who is navigating through your health or health problems, this episode is for you, power packed with information. It will help you, it will inspire you, and we have some real talk and clear facts. So let's dive in. Hi, Dr. Palak. Welcome to Moms Unmuted. Thank you so much for joining us for this episode. So I have been following you for a while and you're doing a wonderful job. आप बहुत सारे women and parents to be को help कर रहे हैं through your content, through your expertise. So for our audience, can you just give us brief introduction about yourself? So, hi, I'm Dr. Palak. I am a very passionate gynecologist, and my practice is basically in Surat. My hospital's name is Femina Women's Care, and the hospital has been successfully running since 4 years now. So, डॉक्टर पालक, मुझे बहुत टाइम से ना एक चीज़ पूछनी थी गायनेकोलॉजिस्ट से. जनरली क्या होता है ना, विमेन वी टेंड टू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है या अदरवाइज इफ दे कंसीव एंड उनको पता चलता है दे आर प्रेग्नेंट. तो ये दो तीन ओकेजन्स हैं जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. बट इज दिस करेक्ट? लाइक व्हाट इज द आइडियल टाइम या आइडियल थिंग टू डू या विजिट गायनेकोलॉजिस्ट? A gynecologist should be your best friend, basically. So, since a girl starts having her first period, Yeah. it's generally the mother who takes her to the gynec. That is when your first checkup should be done, whether everything is normal or not. And that way, the young girl becomes comfortable going to a doctor in case in future if she has any problem. उससे कंफर्ट लेवल बैठता है. और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम जो यंग टीनेज गर्ल्स या फिर इन द लेट टीनेज अर्ली 20s में वो लोग जो फेस करते हैं, दैट दे कैन ओपनली गो एंड टॉक. जनरली क्या होता है ना, गर्ल्स को जब वो टर्म आता है ना गायनेकोलॉजिस्ट, तो Yes. उससे डर जाते हैं. Yes. इट्स अ स्कैरी टर्म एक्चुअली व्हेन वी आर इन दैट एज. Yes. सो इसीलिए दे डोंट टेंड टू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट जब तक उनको कोई प्रॉब्लम ना हो या Exactly. वो प्रेग्नेंट ना हो. Right. सो दूसरी ये चीज़ विच इज concerning for parents these days is जो girls हैं they are getting their periods very early, like 8-9 साल में they are getting their periods first time. So is this concerning and what is the reason? It is a very major issue. Since childhood अभी हम देखते हैं तो बच्चों की लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है. When we grew up, we were not eating jams, ketchup, bread and French fries every day and very frequently. But अभी जो बच्चों की भी लाइफस्टाइल है, they are more eating junk food and they are very sedentary lifestyle. वो या तो पढ़ते रहते हैं या तो फिर screen time होता है. They don't go outside and play. Due to that, the fat level also of the young girls increase. Okay. और पीरियड जब स्टार्ट होते हैं, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैट लेवल दैट यू हैव इन योर बॉडी. सो गर्ल्स हैव स्टार्टेड गेटिंग पीरियड्स एज अर्ली एज द एज ऑफ 8 years. Correct. Now the major issue here is that 8-year-old little girl does not know how to handle the changes in her body. Her emotional management is not understood. How is she going to manage her periods? So that is a very major issue. And in future, वो क्लास में सबसे ज़्यादा बड़ी लगती है. Her body is looking different. She also has image issues and she starts going in depression. So that are the long-term effects when a girl starts having early periods. Oh my god.
राइट। सो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि गर्ल्स को इतना जल्दी पीरियड्स ना आए? सिंस चाइल्डहुड आप जब भी पहला खाना बच्चों को देना चालू करते हो तब से ही हेल्दी हैबिट्स डालना ज़रूरी है। आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि बच्चों को कोई भी गेम में इंटरेस्ट डालो। हम्म। अगर वो कोई भी गेम में इंटरेस्ट होंगे तो दे विल गो आउटसाइड टू प्ले, और मे बी अगर फ्यूचर में उनको कभी भी स्ट्रेस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, दे विल गो आउटसाइड, चलो बैडमिंटन खेलना है, टेबल टेनिस खेलना है, इट कैन बी एनीथिंग, स्विमिंग और एनीथिंग। राइट। Go out of the house and do some physical activity, because everything what the kids do right now is either study, either screen time, or they sleep and eat junk food. So that all is harming a lot. सो कमिंग टू आवर फर्टिलिटी, जब हम बात करते हैं, व्हेन अ कपल स्टार्ट्स प्लानिंग अ बेबी, they have to know about the ovulation Right. cycle. So वो क्या होता है? What is a periodic cycle, ovulation date, and how can it help them in planning a baby? So first we have to understand that what is a normal menstrual cycle. Correct. It can be anywhere between the days of 21 to 35. Starting from the first day of your period till the first day of your next period. Okay. So सबको ऐसा लगता है कि महीने में एक बार आता है, डेट टू डेट ही आना चाहिए, वैसा नहीं है। 21 days to 35 is both is okay, and it can range from anywhere, 3 दिन भी periods जा सकते हैं, through 7 days तक भी आपको जा सकते हैं। और साइकिल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप डे टू डे अपनी सारे एक्टिविटीज कंफर्टेबली कर सको। सो दिस इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। Okay. Now, if a couple wants to plan pregnancy, तो सपोज हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 28 डेज की साइकिल है, तो अराउंड 14 डे एग में ओवरी में से एग रिलीज होता है। सो दैट इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड। सो Okay. एनी टाइम इफ यू हैव इंटरकोर्स a couple of days before that and after that, you have the highest chances of getting pregnant at that time. Now हम लोग स्टडीज की बात करें, रिसर्च शोज अस दैट 1 in 6 women फेस इश्यूज ऑफ फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। सो ये सारे जो नंबर्स हैं बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस? The major reason of increase in the number of infertility cases nowadays is, first of all, urban lifestyle, late marriages, late planning of kids. The second is, due to the urban lifestyle, we are also having a lot of stress. Now, stress creates a lot of negative hormones in your body, which again impacts your fertility. In excessive screen time, because excessive screen time आप देखते रहोगे, आपको जो मेलाटोनिन सिक्रेट होना चाहिए रात को वो नहीं होता है, तो उससे अगेन आपके बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है। देयर इज नो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवरली जंक फूड, जो प्रेजर्वेटिव्स और सब आते हैं, दैट आर आल्सो वेरी नेगेटिवली इम्पैक्टिंग योर fertility. So basically we have upgraded our cities but totally downgraded our reproductive health. Medically, what is the right age to plan a baby? Medically, the right age to plan your pregnancy is in your 20s. The woman is in her prime time of her life. She is not having any issues physically, mentally, and she is और वो एज में जब प्रेगनेंसी प्लान होती है, then we see the number of complications are also much less. The babies are also born very healthy, have good IQ, and even the whole pregnancy and motherhood journey is very comfortable. I hardly see anybody who is planning या who is thinking of planning a baby in her 20s. लोग शादी ही 30 के बाद सोचना शुरू करते हैं आजकल। So उन केसेस में क्या करना चाहिए? Like अगर 30s के बाद या 35 के बाद they are planning to have a baby, and if they are not able to conceive, then what are the options? इनफर्टिलिटी का एक रूल है। पहले ऐसा था कि 35 के बाद अगर आपकी एज है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, यू ट्राई फॉर 6 months and then you directly go to a doctor for assistance. But now that age has reduced to 30, that you try for 6 months. If you are not able to get pregnant, go to a gynec, and here she will be able to help you with what the problems are and may help you get pregnant. Correct. Also, if you are not married by the age of 30 or 35, you are married and you don't know that you want kids, then the best option for a female is go for egg freezing. Okay. So it's a backup plan. हाँ. कि अगर फ्यूचर में शादी होगी and if I am not able to conceive, then I will use this. Egg freezing. Yes. What is egg freezing in simple terms?
एग फ्रीजिंग बेसिकली हर महीने जो हमारे एग्स बनते हैं उसको पहले थोड़ा स्टिमुलेट करके इंजेक्शन देके थोड़े मल्टीपल नंबर्स में क्रिएट किए जाते हैं एंड देन बाय अ स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर दे आर रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी एंड दे आर फ्रीज्ड इन द क्रायो टेम्परेचर so they can stay good for years. अच्छा. So whenever you want to use, you can use them. So now coming to some more facts, according to ICMR, 40 to 50% of infertility cases are because of male infertility. So what do you have to say about this? See, we live in India और अभी भी यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि आगे ऑफस्प्रिंग लाना और फर्टिलिटी इज द स्ट्रेस ऑफ अ फीमेल. Correct. अगर किसी को भी बच्चा नहीं रुक रहा है द फर्स्ट थिंग दे डू दे टेक द फीमेल टू अ डॉक्टर एंड गेट हर चेक्ड or start her treatment. I think reproduction is a team play and not only for the woman. Right. So that is the reason कि male infertility जो होती है वो diagnose करने में काफी time लग जाता है. So it is not a straight away diagnosis for the male. Exactly, because जो जितने भी options है, egg freezing, ये सारी चीजें Exactly. they directly उसको target करते हैं female infertility को. But what about male fertility? अगर male fertile नहीं है तो उसमें क्या options होते हैं? See, male infertility में basic जो male के lifestyle factors होते हैं alcohol, stress and smoking. They are the major impactors of male fertility. So one that lowers the sperm count of the male. So with a few medications you can increase the sperm count of the male. अच्छा, okay, got it. And जैसे females में infertility है, if they are having problem, conceive करने में बहुत साल निकल गए, एक family का pressure आ जाता है. तो आपने ऐसे cases देखे, आपके पास ऐसे clients या patients आते होंगे who are going through such emotional trauma या वो family का pressure, क्या अभी भी वो सब होता है? Where I practice, I see almost 60 to 70% of the females coming for infertility treatment is due to the family pressure. Oh my God. The number is that big. The only thing they say is, जल्दी रुक जाए ऐसा कुछ करो घर पे बहुत torture चल रहा है. Oh my God. Even the couples when they come, even they have that say कि घर पे अब बहुत pressure है जल्दी करके रुका दो pregnancy. Because it maybe initially 3 to 4 years they were not planning pregnancy and now they are starting to plan, but now suddenly the pressure is increased so much from the relatives and everything that they want pregnancy immediately. Exactly. And ये बहुत ही emotionally, mentally बहुत affect करता है, women को. Especially to the female, they are very much depressed. Now what happens in this cases is it creates stress. Correct. Now stress is again a major cause of infertility. Right. तो सब कुछ ठीक हो रहा होता है फिर भी pregnancy नहीं रुकती है. So those cases go in unexplained infertility कि क्यों नहीं रुक रहा है we don't know. So what are some of the lifestyle factors जो silently fertility को affect करता है and women do not even realize? Food with very high preservatives, that is junk food. Second is excessive screen time, which increases melatonin in your body and creates more stress. Third is diet. Diet may, if someone is trying to lose weight and the way they do crash diets and everything, they are not following a particular proper lifestyle. Even that leads to a lot of hormonal imbalances. Oh my God. ये तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि even screen time affects your fertility. Definitely it does. So there's this saying that if you use birth control pills for a longer period of time, it affects your fertility. So is it a fact or a myth? It's a myth. If you take birth control pills for a long time, what they do is they stop your ovulation for the timing you are taking them. Achha. Once you stop, your fertility will return back to normal in a couple of months. And जैसे कोई भी couple है, they are trying to have a baby. So what are the things they should know before, trying to have a baby? First of all, go for a pre-conceptional checkup to a gynaec. बहुत सबको ऐसा कम है लोग कि जाते हैं. प्रेगनेंसी रुकेगी उसके बाद बाद ही जाएंगे. जाएंगे, but go for a checkup before conception. Now I have seen many couples have started coming. कब हम प्लान कर रहा है, you guide us कि हमें क्या क्या करना चाहिए. Do we have to take any medications or something like that? And they get the basic workup done. सब women का और male का thyroid check हो जाता है, दूसरे कोई infections नहीं है वो सब check हो जाता है. So it is a good thing. Then the woman has to start folic acid.
बिकॉज वो अगर वुमेन में डेफिशिएंट है तो बेबी को प्रॉब्लम होने की शक्यता रहती है। हाँ। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं उससे ब्रेन डेवलपमेंट और स्पाइन डेवलपमेंट पे। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देन द वुमन शुड नो हर साइकिल्स, नो द टाइमिंग्स। अगर आपको प्रॉपर पता है आपकी साइकिल कैसी है, देन यू नो हाउ एंड व्हेन यू आर ओव्यूलेटिंग, सो यू कैन टाइम योर intercourse during that time, so that helps to get pregnant easier. Both of them should watch their lifestyle. Correct. If the man stops smoking, if the man has good exercise, the sperm quality improves. Same with the woman, the egg quality improves, and the pregnancy also goes on smoother. Correct. And कितने टाइम पहले से you should start preparing your body? From 6 months. 6 months at least. Start 6 months because 6 month का time आपको planning के लिए देना ही पड़ता है. Correct. If you are about 30, and if you are in your 20s, then till 1 year you can do this preconceptional checkup and start all this. You will conceive in the meantime. I know this is very important कि लोग प्लान करने से पहले डॉक्टर को विजिट नहीं करते हैं. ये मेरा खुद का पर्सनल केस है that I wanted to share. We also started planning. नहीं हुआ काफी टाइम हो गया नहीं हुआ and then I went to the gynecologist Right. to get myself checked देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है and then we got to know that I have multiple fibroids in my uterus. सो दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे. सो ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं चलती until and unless we go and visit a gynecologist. So I think it's very important कि हम गायनेक को प्लान करने से पहले विजिट करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया व्हाट इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट व्हाट इज नॉट नॉर्मल, क्या वो बताना चाहेंगे? लाइक बिकॉज पेनफुल पीरियड्स लोगों को लगता है इट्स वेरी नॉर्मल, बट आई डोंट थिंक इट इज नॉर्मल. Painful periods लोगों को normal इसलिए लग रहे हैं because women are trained that suffering is a part of life. True. So it should not be like that. Any periods जिसमें आप अपना डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, उतना पेन आपको हो रहा है. इफ यू आर वर्किंग, गोइंग टू स्कूल, डूइंग एनीथिंग, और अगर आप वो काम नहीं कर पाते हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर. और द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग दैट यू आर हैविंग, even with that you start feeling dizzy, और multiple 8 to 10 pads per day आपको चेंज करना पड़ रहा है, even that is not normal. You need to visit your doctor. PCOS, PCOD इतना ऑफन सुन रहे हैं हम लोग, लाइक नियरली 1 in 5 गर्ल्स दे आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, PCOS. सो बहुत सिंपल टर्म्स में कैन यू एक्सप्लेन लाइक व्हाट इज PCOS एंड PCOD? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होता ऐसे है कि हर महीने हमारी नॉर्मल साइकिल, मैंने जैसे समझाए कि 14 डे के अराउंड एक एग रिलीज होता है, और फिर उससे प्रेगनेंसी रुकती है, या तो अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है देन इट एट द एंड ऑफ द मंथ कम्स आउट एट पीरियड्स, द लाइनिंग, Right. उसकी लाइनिंग. जी. अब पीसीओडी में होता ऐसा है कि देर आर काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जिससे हर एक एग जो हर महीने बनना चाहिए उसकी जगह पे बहुत सारे बल्टे छोटे छोटे फॉलिकल्स आपके ओवरी में बन जाते हैं. वो पर्ल का नेकलेस होता है ना, वैसे अरेंज होते हैं. यू कैन टिपिकली सी ऑन द सोनोग्राफी अरेंज लाइक दैट. और जो ओवरी का मिडल पार्ट होता है वो एंड्रोजन्स, मतलब जो मेल हार्मोन्स होते हैं वैसी टाइप का सिक्रीशन चालू कर देता है. तो उसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ऑयली स्किन, एक्ने, डार्क पैचेस, मेल ग्रोथ हेयर पैटर्न, वो सब आना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को. सो आई थिंक ये सारे सिम्टम्स तो लोग इतना अवॉइड या निग्लेक्ट कर देते हैं. दे डोंट इवन रियलाइज कि मुझे कोई प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली. And these problems go very undiagnosed and unnoticed. PCOS mostly goes undiagnosed and unnoticed because it has variety of syndrome. It has a variety of symptoms. Okay. And most of them mimic other problems as well. अगर आपको डिलेड पीरियड्स एक दो बार हो रहे हैं तो आप सीधा नहीं सोचोगे पीसीओएस है, बिकॉज इट्स नॉट दैट फेमस. आपको एक्ने हो रहा है तो आप वो नहीं सोचोगे कि मेरे पीरियड्स के कारण एक्ने हो रहा है. यू विल गो टू अ स्किन स्पेशलिस्ट फर्स्ट. सो इट हैज अ लॉन्ग रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड दे आर नॉट स्पेसिफिक. ऑल्सो उसके डायग्नोसिस के लिए कोई एक स्पेशल टेस्ट नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए टेस्ट करवा के देख लेते हैं. अच्छा. वैसा डायरेक्ट डायग्नोसिस नहीं है. सो उसके कारण भी डायग्नोसिस में काफी डिले होता है, और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं. आपको पीसीओएस है और आपको जो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुझे कंप्लीट अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, येट द डायग्नोसिस
must be the same. So I see girls as young as 13 years, they are facing PCOS, and these numbers are rising. What are the causes? PCOS, PCOD क्यों होता है? The major cause of PCOS, PCOD is hormonal imbalances. अब hormone imbalance हमें हो क्यों रहा है? हाँ, The major issue is diet. डाइट में जो बहुत सारा प्रिजर्वेटिव वाला हाईली प्रोसेस्ड फूड हम जो खाते हैं, दैट इज क्रिएटिंग ऑल द हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इन योर बॉडी सिंस द चाइल्डहुड. तो उससे वो प्रॉब्लम राइज हो रहा है. द अदर इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल. देयर इज नो एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म okay. इन द यंग जनरेशन दिस डेज. तो उसके कारण भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रहे हैं. एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, उससे भी हार्मोन्स का हैवॉक स्टार्ट हो रहा है. So what is the treatment for PCOS? सब डॉक्टर के पास पीसीओएस में आते हैं और यही कहते हैं आप हमें दवाई दे दो और इसको ठीक करो. देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट राइट नाउ. ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो वो ही है. मैंने कितने सारे पेशेंट्स देखे हैं जिसको मैंने लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की सजेशन दी है, एंड दोज पीपल हु हैव डन इट, दे हैव कंप्लीटली रिवर्स देयर सिम्टम्स. उनके पीरियड्स रेगुलर आना स्टार्ट हो गए हैं, हेयर ग्रोथ, ऑयली स्किन, एक्ने का भी प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो गया है. सो द मेजर ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस इज लाइफस्टाइल. Okay. सेकेंड, अगर जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे. Right. अगर एक पेशेंट को बहुत ज्यादा मेल हेयर ग्रोथ पैटर्न है, एंड्रोजेनिक पैटर्न बहुत है, तो फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हमने बोला वो दे के उसके फीमेल हार्मोन्स थोड़ा बढ़ा के हम स्टार्ट कर सकते हैं. डिलेड पीरियड्स है तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं. साथ ही में हेयर ग्रोथ वाला प्रॉब्लम होता है तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी उसमें करनी पड़ती है, बिकॉज अपीयरेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम. द मेजर इश्यू विच वी सी इज पेशेंट इज नॉट एबल टू कंसीव. तो उसमें पेशेंट कंसीव कर जाए उसी की ट्रीटमेंट हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो Exactly. हर मेजर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. This was exactly my next question. Like, does PCOS affect your fertility, and how concerning is it? If you see as a journey, Hmm. and if you have PCOS, it's like a bump in the road, but it's not a dead end. Okay. So with some treatments and some lifestyle changes, the patients can easily conceive. But it does affect fertility. It does affect. पीरियड्स ही आपको टाइम पे नहीं आएंगे, आपका ओवुलेशन ही नहीं होगा, एग ही नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी डायरेक्टली कैसे रुकेगी? And जैसे हम लोग 30s की एज में आ जाते हैं, लाइक व्हाट आर द स्क्रीनिंग्स जो एक फीमेल को बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए, देयर आर मस्ट टू टेक? The most important screenings to be done is pap smear or HPV testing for cervical cancer. The second is breast examination. Self breast examination once a month should be done, and if you feel any nodule or anything not seen before, then you should consult a doctor immediately. Third is you should measure your thyroid levels yearly. The fourth most important thing is blood pressure and blood sugar. मोस्ट ऑफ द पीपल जिसको कुछ भी हम आते हैं कुछ और चीज के लिए क्लिनिक में आए होते हैं, व्हेन आई चेक द बीपी इज थ्रू द रूफ. व्हेन आई आस्क पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों चेक करूं? ये छोटी छोटी चीजें हम लोग इग्नोर करते हैं. बट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर आर सो कॉमन दिस डेज. सो दिस इज not to be forgotten. These are the 5 main things. Breast cancer these days is on a rise in India. मतलब मैं जिसको सुन रही हूँ दे आर पॉजिटिव या कैंसर डिटेक्ट हो रहा है. लाइक आर देयर एनी रीजंस, पर्टिकुलर रीजंस जिसकी वजह से ये हो रहा है? जनरली कोई भी कैंसर होता है इट इज ड्यू टू म्यूटेशन. नाउ म्यूटेशन कॉज करने के लिए काफी रीजंस होते हैं. पहले तो ये बहुत सारे प्रिजर्वेटिव टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं, पोल्यूशन, दैट आर द वेरी मेजर रीजंस जिससे म्यूटेशंस बहुत कॉमनली हो रहे हैं विच लीड्स टू कैंसर. कोई भी हम फूड आइटम खाते हैं, अभी न्यूज में आ रहा है पनीर भी बहुत ज्यादा फेक होता है. हाँ, मिल्क में भी हार्मोन्स आते हैं. नाउ एवरीथिंग इज टॉक्सिन फॉर योर बॉडी. करेक्ट. So due to this adulteration, now the cancer cases are skyrocketing. Yeah. Now let's talk about pregnancy, childbirth, very important topic. My So- favorite. Right. So there are many females who want normal childbirth, जो vaginal birth बोलते हैं, but they are scared of pain. First, लोग इतना बताते हैं कि labor pains और ये बहुत ही ज़्यादा difficult होता है. So what can they do so that they are mentally and physically prepared for that? पहले तो सब छोटी छोटी चीजें इंटरनेट पे सर्च करना बंद करो.
because you will only see only things that will go in your mind are the negative things that you see. Right. Think positive. A woman's mind should, I will try for a normal vaginal delivery, हो जाता है तो ठीक है. Hmm. For planning, first of all, mental planning. If she is mentally strong and she is prepared, then she will have a very positive mindset about it. Right. Second is physical planning. She has to start walking. पेल्विक एक्सरसाइजेस थोड़ी आती है, स्क्वाट्स होते हैं, लंजेस होते हैं, वैसा थोड़ा थोड़ा करना चालू करना चाहिए. तो उससे थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो शी विल एबल टू बेयर पेन. और मेन जो पेन होता है उसकी कोप अप मैकेनिज्म, द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट यू हैव, कि अगर आपको पेन आ रहा है देन यू टू टेक शॉर्ट ब्रेथ्स, पेन जा रहा है देन यू टेक डीप ब्रेथ्स सो दैट योर बॉडी गेट्स प्रॉपर ऑक्सीजन. सो यू शुड नो हाउ यू विल गो थ्रू दैट टाइम. Right. अगर ये सब में मैनेजेबल होता है द फीमेल, देन शी कैन गो वेरी इजीली टू अ सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी इफ देयर आर नो अदर प्रॉब्लम्स. Correct. So I think आजकल बहुत सारे प्रीनेटल क्लासेस भी चलते हैं. यस, दे शुड जॉइन वन. है ना. So they teach all this कि कैसे Yes. जाना है, breathing exercises. 100%. So cesarean, C-section deliveries are on a rise like never before. What are the reasons? C-section deliveries are on a rise now. People want to have control of what they are doing now. Hmm. किसी को अनप्रेडिक्टेबिलिटी पसंद नहीं है. अब नॉर्मल डिलीवरी में होता ऐसा है कि देयर इज नथिंग नॉर्मल अबाउट नॉर्मल डिलीवरी. जब पेन आना स्टार्ट होता है, इट किसी की नॉर्मल डिलीवरी 3-4 घंटे में हो जाती है, किसी का पूरा दिन रात भी ले सकती है. Correct. Now to go through that pain and everything, not all women are willing to do that. So that is also major reason कि patient selectively काफी बार बीच में बोल देते हैं कभी हमें C section करवा देना है, तो that is one factor. Also the lifestyle factors that I told, Hmm. कि अभी obesity बहुत ज्यादा patients में बढ़ गई है. Hmm. Now if the patient is 90 kg, 100 kg and going for a labor, तो हाँ. उनका progress we have generally seen that it's not as good as the lean patients. Correct. तो उसमें प्रॉब्लम आती है. फिर इंडिया में वी हैव जनरली सीन द हाइट ऑफ वुमेन इज कंपैरेटिवली शॉर्टर देन इन फॉरेन कंट्रीज. सो इफ वी कंपेयर डेटा फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, इवन दैट इज अ रीजन. जनरली अ गुड हाइट हैज गुड पेल्विस, सो बिग बेबी कैन पास थ्रू इजीली. नॉट ऑलवेज द केस, बट इन मोस्ट केसेस दैट हैपेंस. Like मैंने ना बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा है who suggest कि नहीं आप सी सेक्शन करवा लो, we should not wait further. So do you think doctors intentionally ये बोलते हैं या सी सेक्शन प्रेफर करते हैं? I don't think so in all cases, but you have to see the category of the patient also. If and sometimes I think Yeah. काफी बार पेशेंट्स में ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स रिलेटिव्स के साथ आता है कि कब डिलीवरी होगी, कैसे होगी, थोड़ा भी पेन स्टार्ट होता है, आप देख लो हो जाएगी कि हो जाएगी कि हो जाएगी नहीं, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है फिर. अच्छा. राइट. एंड जैसे पेन की बात हो रही है, सर देयर आर पेन रिलीफ ऑप्शंस ड्यूरिंग Yes. लेबर पेन, बट इंडिया में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं उन ऑप्शंस के बारे में. सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दोज ऑप्शंस एंड आर दे सेफ? See, the most common used is epidural injections during labor. Okay. Okay, तो it is a very small needle. जैसे सी सेक्शन में स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, वैसे ही एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है और उसमें ड्रग इंजेक्ट किया जाता है. उससे द लेबर प्रोग्रेसेस स्मूथली, बट द वुमन feels almost 80% less pain. Oh, So it is a very good option and it is completely safe. so क्यों लोग नहीं प्रेफर करते हैं these options? पहले तो एक मिथ चलता है कि कमर में सुई लगने से पूरी लाइफ बैक पेन होता है. Correct. तो उसके कारण मेजरली जो सबको सी सेक्शन भी स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं पसंद है, वही लॉ इसमें भी इम्प्लाई होता है कि वो सुई लगेगी उससे पूरी लाइफ बैक पेन होगा. हाँ. फिर सबको ऐसा लगता है कि उसमें पेशेंट चल फिर नहीं पाएगा. बहुत सारे मिथ्स है जो सबने फॉलो किए हुए हैं, उससे लेबर स्लो हो जाता है. दैट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज द केस. पेशेंट एकदम रिलैक्स हो जाता है तो लेबर ऑल्सो प्रोग्रेसेस वेरी स्मूथली आफ्टर दैट. And what's one thing that you think every pregnant woman should know before going into labor? इट इज अनप्रेडिक्टेबल. मतलब 1 घंटा भी चल सकता है, 10 घंटा भी चल सकता है. आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे रेडी होके हॉस्पिटल जाऊंगी, ऐसे मूवीज में दिखाए वैसे पुश करूंगी और बच्चा बाहर आ जाएगा. दैट इज ऑलमोस्ट नेवर द केस. Correct. Each and every mother has a different labor experience.
किसी का स्मूथ होता है, किसी का ट्रॉमेटिक हो जाता है क्योंकि बहुत लंबा चलता है। द पेन इज द वर्स्ट दैट यू कैन गो थ्रू इन योर लाइफ। करेक्ट। और किसी का इतना सहन करने के बाद भी मे बी लास्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है। सो इट इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। जनरली क्या होता है ना, जो लोग सी सेक्शन करवाते हैं, सोसाइटी वाले उनको ऐसे देखते हैं कि यू वेंट फॉर अ शॉर्टकट, कि भाई आपने इजी वे आउट ले लिया सी सेक्शन करवा के, बिकॉज आपने पेन वेन तो झेला नहीं। आई वुड लाइक टू शेयर एन इंसिडेंट ऑन इट। अभी ही लास्ट मंथ ही एक पेशेंट था जिसको नॉर्मल डिलीवरी करवानी ही नहीं थी एंड शी वाज सो अगेंस्ट इट। उसने एक भी बार मुझे पेल्विक एग्जामिनेशन ही नहीं करने दिया कि आई विल नॉट अलाउ यू टू चेक ऑन, कि आगे नॉर्मल डिलीवरी की तो बात ही ना हो। ठीक है। नाउ शी वाज टेलिंग एवरीवन उसको नहीं करवाना है, बट एवरी द फैमिली मेंबर्स वर सो एडमेंट कि नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छा होता है, आप तुम्हें वही करवानी है। एंड शी वाज नॉट विलिंग एट ऑल। हम हर रिलेटिव्स इन फ्रंट ऑफ मी सेड तुम्हें अपनी लाइफ क्यों बिगाड़नी है। सी सेक्शन इज नॉट एन इजी चॉइस, इट्स अ मेजर एब्डोमिनल सर्जरी एंड इट इज आई थिंक द ओनली सर्जरी जिसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी 3-4 घंटे में ठीक हो जाएगी, रिलेटिव्स को स्माइल करके हेलो भी बोलेगी और एक बच्चे छोटी अलग लाइफ का ध्यान भी रखेगी। करेक्ट। और उसकी पूरी रिकवरी के साथ साथ एक बेबी का ध्यान भी रखना है उसको साथ में। सो एग्जैक्टली। इट्स नॉट एन इजी चॉइस, but no one should be let down because they make that choice. पोस्ट डिलीवरी फेज है, लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी फेज, उसके बारे में लोग प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। जैसे इवन मैं भी थी तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि प्रेगनेंसी में ये चीज़ें होने वाली है, क्योंकि उस पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है लोगों से, डिलीवरी ऐसे होने वाली है, सी सेक्शन हुआ तो ये होगा, नॉर्मल हुआ तो ये होगा, ये सारे ऑप्शन, मेरे में भी यही एंड आई वॉज रेडी फॉर इट। बट पोस्ट डिलीवरी जो फेज होता है, इट्स सच एन आफ्टर थॉट कि जो होगा बाद में, और उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता है। कोई कुछ नहीं बताता है। So what are the things you think people should know, women should know about post delivery phase? की जो हालत है वही सेम मेरी हालत है। पूरी प्रेगनेंसी तो आई एम तो एक्सपर्ट इन दैट, हाँ। तो मुझे ईच एंड एवरी चीज पता थी। डिलीवरी का भी आई वाज क्या हुआ, कितना बाकी है, क्या होगा, आई वाज एबल टू टॉक कि कब अरे। कब होगी। सो आई वाज कंफर्टेबल थ्रू दैट फेज आल्सो। बट होता क्या है कि डिलीवरी मैं करवाती हूँ, फिर बच्चों पीडियाट्रिशियन को दे देती हूँ, फिर वो रिलेटिव्स के पास जाता है। हाँ। मेरा बच्चा वापस मेरे पास आया। हाँ। देन आई वाज लुकिंग कि अब क्या करूँ। नाउ आई हैव नो क्लू। एग्जैक्टली। सी postpartum time is the most difficult वही मुझे ऐसा because लगता है, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी तो सबसे इजी easy चीज है। है जो हम कर लिए। जो अब स्ट्रगल है वो तो पोस्टमार्टम शुरू होता है। So postpartum time में होता ऐसा है, the mother is in pain। राइट। ठीक है। The baby is new, the baby has to handle new things। बेबी को सुसु लगती है, बेबी को पॉटी लगती है, बेबी को भूख लगती है, बेबी को टेम्परेचर रेगुलेशन में होता है, वो बार बार होता रहता है। हाँ। एंड द सेम टू अ मदर हु इज इन पेन हैज टू हैंडल एवरीथिंग। राइट। अभी प्रेगनेंसी के साथ जो प्रेगनेंसी के एकदम सारे ब्यूटीफुल हार्मोन्स होते हैं वो अचानक डिलीवरी के बाद कम होना स्टार्ट हो जाता है। So that is what is known as the pregnancy blues, राइट। postpartum depression। वो सब एकदम hormones चले जाते हैं। I have seen multiple times the woman keeps on crying, is not understanding what is happening with us, so she is not even in her perfect emotional state। राइट। और उसमें वापस बेबी का ध्यान रखना होता है। एग्जैक्टली। वापस बहुत सारे इंडिया है तो बहुत सारे रिलेटिव्स भी साथ में मिलने आते हैं अरे टू कांग्रेचुलेट द कपल डोंट एंड एवरीथिंग। आस्क। तो उसमें भी बहुत सारा इश्यू आता है। साथ ही में द मदर कैन नॉट रिकॉग्नाइज हरसेल्फ बिकॉज द मेजर चेंज इन हर फिजिक एंड अपीयरेंस हैज हैपेंड। राइट। वो प्रेगनेंसी तब तो बम्प था, वो था, उसमें सब अच्छा लगता था, पर अचानक नाउ शी कैन नॉट फील एट हर एज हरसेल्फ। करेक्ट। सो इवन शी हैज दैट मेंटल ट्रॉमा। राइट। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ। करेक्ट। एंड जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद हाउ कैन दे स्टे हेल्दी एंड फिट, उसके लिए कुछ सजेशंस? पहले तो ऐसा है कि बेबी जस्ट डिलीवर हुआ है तो बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है। योर बॉडी ओनली नीड्स 300 to 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज व्हेन यू आर breastfeeding। सो फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ फूड यू आर ईटिंग एंड नॉट द क्वांटिटी। और प्रोटीन इनटेक ठीक से रखो। What majority of the people forget is hydration. When you are making breast milk, your body dehydrates so much. हाइड्रेशन। So I always advise कि जब भी आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो उसके बाद आप खुद एक ग्लास पानी पियो।
बिकॉज डिहाइड्रेशन होता है तो आपको हेडेक होता है, स्ट्रेसफुल फील होता है, आपको समझ नहीं आता आपको क्या हो रहा है, एंड अल्टीमेटली यू एंड अप ईटिंग मोर. एंड जैसे बोलते हैं कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको घी बहुत सारा खाना चाहिए, पता नहीं बहुत सारी चीजें खिलाते हैं राइट. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. आर देयर सम स्पेसिफिक फूड्स जो लेने चाहिए? यस, डेफिनेटली. जो इंडियन कल्चर में डिलीवरी के बाद का जो डाइट है, इट इज नॉट ओनली फॉर कैलोरीज, इट इज ऑल्सो टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द मदर. हाँ. क्योंकि डिलीवरी के पोस्ट डिलीवरी जो टाइम है तब इम्यूनिटी भी मदर की काफी कम होती है, तो उससे मदर को ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. तो ऑल द फूड, आई नेवर गो अगेंस्ट व्हाट द फैमिली इज सेइंग. ऐसे आपके घर में जो भी सिस्टम है 1 मंथ यू हैव टू फॉलो दैट. राइट. ठीक है. जो जीरा है, सुआ है, हाँ, हाँ. और जो सारी चीजें वो लड्डू बना के खिलाते हैं, ऑल दैट इज गुड फॉर योर बॉडी अल्टीमेटली. What is the biggest pregnancy misconception that you would like to burst? ईटिंग फॉर टू. योर बॉडी ओनली नीड्स 300 extra calories during pregnancy, and that you can get very easily. So again, focus on the quality of the food you are eating, not the quantity. And the second most common, I'll tell you one more myth, the pregnancy glow. नॉट ऑल वुमेन हैव द प्रेगनेंसी ग्लो. लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी स्किन डल हो गई है, इसको एक्ने हो रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम. प्रेगनेंसी ग्लो इज नॉट कॉमन. वो काफी लोग में देखने मिलता है, काफी लोगों को नहीं मिलता है. वो प्रेगनेंसी है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है. सो ये प्रेगनेंसी ग्लो होना ही चाहिए ना, वो भी एक बहुत बड़ी मिथ है. अभी ऐसा होता है ना बहुत बार जब प्रेगनेंसी होती है, सो कुछ लोगों को क्या बोलते मिसकैरेज हो जाते हैं. यस. सो दैट्स ऑल्सो टॉपिक जो बहुत लोग बात नहीं करते हैं. व्हाट गोज आफ्टर दैट मिसकैरेज हो गया. ऑफ कोर्स कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे. उसके बाद भी जो मेंटल ट्रॉमा होता है प्लस फैमिली का प्रेशर होता है, लाइक हाउ डू दे हैंडल दिस? If 100 pregnancies are conceived, only 70 will go to a healthy delivery and a baby. 30 will end itself. That is the natural selection process. Okay. Not each and every pregnancy that is formed naturally will have a perfect baby. There can be genetic issues, there can be problem in the forming, so they will miscarry themselves. So that is, it is not necessarily कि अगर आपका एक बार miscarriage हुआ है तो कोई major issue है. अब उसमें क्या होता है कि एवरीबडी सीज द फीमेल कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि अभी नई नई शादी के 1-2 साल हुए होते हैं और किसी को फर्स्ट प्रेगनेंसी रुकी होती है, तो एवरीवन इज ओवर द मून एंड सडनली 1.5 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स में मिसकैरी हो जाता है. अब मिसकैरी होता है ना, तो आई हैव सीन कि फीमेल अपने आप पे बहुत ज्यादा एक प्रेशर ले लेती है. ऑलमोस्ट 80 to 90% जिसका मिसकैरी होता है, दे आस्क मी वन क्वेश्चन, मेरी गलती के कारण हुआ है. दैट कैन बी एनी रीजन. मैंने कुछ खाने पीने में गलत किया, मैं वर्क करती हूँ इसके कारण ऐसा हुआ, मैंने ड्राइविंग ज्यादा किया था इसके कारण ऐसा हुआ. दैट इज नॉट द केस. ये सारे आउटसाइड के फैक्टर्स अफेक्ट वेरी लिटिल एंड द मेन प्रॉब्लम आई टोल्ड यू. सो आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर दिस बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स कि मेरी गलती के कारण ऐसा हुआ है. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में कितना प्रेशर चल रहा होता है टू गेट एन ऑफस्प्रिंग. करेक्ट. राइट. अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज मेनोपॉज, विच इज Yes. वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन अ वुमेन्स लाइफ. और हम इंडिया में देखेंगे द एवरेज मेनोपॉज एज इज 46.2 years, विच इज क्वाइट अर्ली देन द ग्लोबल एवरेज. सो इसके लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? अर्ली मेनोपॉज है उसके. सी, जब भी आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं, योर हार्मोन्स आर इम्पोर्टेंट इन योर बॉडी. एज सून एज यू गेट मेनोपॉज, आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बॉडी में से जा रहा होता है. नाउ एस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपकी बोन हेल्थ में काफी रेगुलेशन करता है, और साथ ही में हार्ट हेल्थ, जो कार्डियक हेल्थ बोलते हैं, उसमें भी काफी हेल्प करता है. द मोमेंट यू गेट मेनोपॉज, तो उसके बाद स्लोली स्लोली आपकी बोन हेल्थ डिटोरिएट होती रहती है. और उसके साथ आपके कार्डियक मतलब हार्ट अटैक आने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं. अच्छा. सो सिर्फ इट इज नॉट ओनली अप टिल पीरियड्स के पीरियड्स बंद हो रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स इसमें अफेक्ट हो रहे हैं. आप न्यूज में देखते हो 33 year old, a 35 year old male got an heart attack and died.
You will never see that kind of news for a female Right. because at that time her periods and everything is going on. So estrogen is protecting her for everything. Right. So periods are so important Yes. for her health. And जैसे menopause, तो हम लोग simple terms में if you can explain कि menopause होता क्या है? So menopause does not come directly. There is a period known as perimenopause. Okay. It can be anywhere about 6 months to 2 years before you actually hit menopause. 2 years भी हो सकते हैं. Yes. Okay. So slowly and slowly you will start feeling changes. आपको मूड चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं, स्लीप चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं, आपका बॉडी थोड़ा थोड़ा पेन करना स्टार्ट होता है, पीरियड्स इरेगुलर होते जाते हैं, मतलब या तो आपको 2-3 महीने पे आना स्टार्ट हो जाएंगे या तो काफी लोगों को हैवी आने भी स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस इट क्रिएट्स. और स्लोली ये फेज जब आप क्रॉस करते हो देन एवरीथिंग स्टॉप्स योर बॉडी अगेन. आपके पीरियड्स कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, मतलब आपके लास्ट 1 ईयर में अगर वो पीरियड बिल्कुल भी नहीं आया है देन यू हैव हिट मेनोपॉज. Is it true like menopause increases the risk of heart diseases and osteoporosis in women? Yes. Estrogen, an important part of the female hormone system, regulates a lot of the bone health and the cardiac health. As soon as the woman gets menopause, her estrogen level starts to drop. So the protective effect of the estrogen is gone. तो उससे बोन हेल्थ मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट होता है. Okay. और साथ ही में कार्डियक प्रोटेक्टिव जो नेचर है उसका वो भी चला जाता है, तो हार्ट अटैक के रिस्क भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. Women in their 40s go through a lot. So how can they take care of their health in their 40s? The first is eat well, take higher protein intake. That will help you build your muscle mass and that will be advantageous for you in your future. Exercise, do some form of exercise. It may be strength training, walking, something, so that will keep you healthy and fit and also take care of your cardiac health. Know your symptoms. If you are going through menopause is a very depressing time for a woman. She has a roller coaster of emotions going through. She feels weak. So what goes her in her mind is that I am crazy, I am lazy. That's not the case. You are going through menopause and that is causing such problems. So knowing the symptoms so that you can cope up. Also, while prepping, what you can do is know to manage your stress. Yoga, breathing exercises, something like that. So when your emotions are on a roller coaster, you know what to do. But जैसे menopause होता है, so many Indian women think कि menopause के बाद they lose their sexual desire या intimacy खत्म हो जाएगी. Is that true? See, what menopause does is your body goes through a lot of changes. Now, one important change is vaginal dryness. You feel very itchy and irritable over there. And the second change actually is loss of libido, that you feel less sexual desire. So, if you have a supportive husband who understands your symptoms and helps you go through that phase, then again, slowly and slowly, everything will start to get normal. But it is a phase which is difficult for the husband and wife, and they should go through it together, not only the woman. And can we talk about HRT? Yes. Like, and is it safe? HRT is basically hormone replacement therapy, which is given to a woman when she is going through her menopause. Okay. उससे होता क्या है कि उसके मेनोपॉज के जो इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, जो हॉट फ्लशेस आते हैं, जो स्लीप डेप्रिवेशन होता है, वो सारे सिम्टम्स में काफी हेल्प होती है. बट it has to be selected case to case and done, if done properly, it is great for some women. So if we are in 30s, a woman in her 30s, वो कैसे prepare करे for her menopause? What things should they do? First of all, in your late 30s, everyone should track their cycles. They should know when your periods are coming, so you know when things are going off rate. Exactly. क्योंकि बहुत लोगों को पता ही पता ही नहीं नहीं चलता चलता है है. कि this is perimenopause या menopause आ Yes, रहा है. exactly. अगर आपको अपने पीरियड की डेट और सब कुछ साइकिल्स प्रॉपर्ली रेगुलेट पता है तो आपको पता चलेगा कि कुछ एबनॉर्मल स्टार्ट हुआ है. और Correct. उसके साथ अगर आपको कोई और अलग सिम्टम्स भी आ रहे हैं, देन यू विल रियलाइज कि सम प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड इन मी एंड आई एम गोइंग थ्रू समथिंग डिफरेंट. Only then you can discuss that problem with your doctor or someone. I think we have covered most of the topics concerning women health, pregnancy, childbirth, menopause. If you can give 3 suggestions that every woman should do for her health. Don't ignore the signs your body give you. That is the most common thing
I see on my day-to-day practice, लोग help के लिए आते ही नहीं हैं. नहीं. Take care of your body and exercise. So we come to an end to majority of our questions. So I have a very interesting round for you, which is rapid fire round. So let's start. What's the most common question you get in your DMs? I am having white discharge. What should I do? One health habit you swear by personally. Following a very healthy diet and sleeping on time. If you could give only one piece of advice to every 18-year-old girl in India, what would it be? Take your health seriously and consult a doctor if you feel anything is wrong. What's a medical fact you wish more women know? You do not produce new eggs in your body. They come with you when you are born. So your fertility will keep on declining as you age. It will go down in your 30s and after 35 still more. ये तो मुझे भी नहीं पता था. What's one thing you do to unwind or de-stress? I exercise. What's a book, movie, or show you would recommend to all women? The book 7 Habits of Highly Successful People. Finish this sentence. Every woman deserves to feel. Special. One myth about pregnancy or childbirth you want to bust for Indian mothers. Eating for two. What's one thing you recommend every mom do at her annual health checkup? First of all, go to your annual health checkup. Right. आप जाओगे तो बाकी सब हो जाएगा. Your favorite quick self-care ritual for busy moms? Have some me time for yourself. It may be 1 hour a day or 1 hour in a week. Do what you love. Right. What's the most common nutrition mistake you see in Indian moms or moms to be? Not reading the nutritional facts on the packets. When it is written healthy, they consider it healthy. Oats biscuit are healthy as compared to normal biscuits. Now oats is only 0.2%. Read what you are eating. Right. One thing you wish families would do to better support new mothers? Be understanding that she is going through something different and difficult in her life. That is the best thing any family can do actually. Correct. I think आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, it was very insightful. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला and I'm very sure मेरे audience को, followers को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस episode से. One last advice you would like to give to our audience? See, my hospital's name is Femina. Femina means beautiful woman. So woman and woman's health is very important. So do not ignore anything and take yourself seriously, because if you are healthy, your family and everyone around you will be happy and healthy. Amazing. Thank you so much, Dr. Pala. We had an amazing time discussing all this. Thank you so much. Same here. Thank you for having me. So guys, ये एपिसोड से मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला. It was so insightful. There were so many things that we discussed that even I did not know as a mother myself. So अगर ये एपिसोड आपको उतना ही informational और helpful लगा हो, so please इसको share करना बिल्कुल मत भूलना and do subscribe. Like and comment करना तो बिल्कुल मत भूलना. Bye bye.